Polimi Saha also tracking that story very, very closely. Essentially, Polimi, I'm just going to go back to Preeti also, who in fact continues to be with us. Polimi, also the very fact that 2 seats were essentially offered, like you pointed out at the very beginning of this conversation. However, the leadership in the state of Bengal, the Congress leadership in the state of Bengal, has actually gone all guns blazing against Mamata. I don't see the central leadership reining in Adhir Ranjan Chowdhury at any point in time. How is that even going to be allowed and then expected that there will be a working equation between both of these parties? Okay, I'm just going to in fact connect with Preeti also, who continues to be with us. Preeti, I want to get a sense from what the central leadership essentially in Congress is thinking about these developments, given that they also failed to rein in Adhir Ranjan Chowdhury. These statements were allowed to be made, and the Congress central leadership never really made an attempt to rein in Adhir, isn't it? Well, Sneha, one thing is very clear. This is a huge wake-up call for the Congress party. Let's break it down on what has led to it. 31st December was the last date for the TMC, which gave a kind of an ultimatum to the Congress to decide on seat sharing. That date was not honored by the TMC. At that point of time, the TMC communicated through its committee, which is the seat sharing committee, to the Congress that, one needs to quickly get down to seat sharing immediately, and we are giving you a little more time because 31st December was the last date. At that point of time, the TMC, on the basis of the formula that they had offered the India Alliance, it practically in every with us, in fact, Preeti, I'm going to come back to you now. BJP's Rahul Sinha is also now joining us. Rahul Sinha, आप कैसे देखते हैं डेवलपमेंट्स को? ममता बनर्जी ने कहा है कि कांग्रेस के साथ ये सीट शेयरिंग नहीं करेंगे बंगाल में. टीएमसी और कांग्रेस साथ मिलकर काम नहीं करेगी. देखिए, बात ये है, ये सब जो होगा ये हमको पहले से ही मालूम था, सबको मालूम था. कारण कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस मिलके काम नहीं कर सकते, और सीपीएम का साथ तृणमूल कांग्रेस मिलेंगे तो तृणमूल कांग्रेस का तो सारे चीज भ्रष्ट हो जाएगा. तो इसीलिए आखिर में ये काम होगा ही, ये सबको मालूम था. एक्चुअली कोई उद्देश्य नहीं है, कोई देश का कोई सामने कोई प्रोग्राम नहीं है. ऐसे ही कुछ लोग बीजेपी को हराओ करके एक मंच में आ गया. एक मंच में तो आ गया, लेकिन खाना भी खा लिया, लेकिन चलना उतना आसान नहीं है. आज ये प्रमाण हो गया, जो कांग्रेस का साथ अभी कोई नहीं चल सकते, तृणमूल का साथ भी कोई नहीं दे सकते. ऐसा सिचुएशन जो हुआ, ये INDA जोट एक बकवास बन के रह जाएगा. कुछ होने वाला नहीं है, सब बिखर जाएगा और कुछ होने वाला नहीं है. भारतीय जनता पार्टी जी, मोदी जी का नेतृत्व में आगे जैसे बढ़ रहा है, उससे भी तेजी से आगे बढ़ेगी. लेकिन यहाँ पर तो अलायंस वर्कआउट नहीं कर रहा है, लेकिन कई सारे ऐसे इंडी अलायंस के ऑपोजिशन पार्टीज का ये कहना है कि ये दिक्कतें तो आएंगी, बाकी जगह में अलायंस काम कर सकता है. राहुल सिन्हा, ऑलराइट, these are problems, these are teething problems, essentially is what many opposition parties have said. However, as far as Bengal is concerned, make no mistake, the TMC and the Congress are not doing business together. Preeti continues to be with us, so does Polimi Saha and Indrajit Kundu, getting us all the details on that story. Preeti, in fact, you were telling me about the Congress leadership. Do give us a sense of how are they viewing this, how big a setback do they see? Well, this, Sneha, like I was pointing out, is a big wake-up call for the Congress party. 31st December was an ultimatum given by the TMC, on the basis of which later on they said they're going to give you more time. They offered a formula to the Congress party, especially for the India Alliance, in states where regional satraps were strong. Number one, that the dominant party, of course, will make the final call. Number two, that one looks at the performance of the political parties in Lok Sabha elections, one, second in state elections, and third, in both Lok Sabha and state elections. At the back of that, they had offered 2 seats to the Congress out of the 42 where the state of West Bengal was concerned. Having said that, later on they said that if the Congress accommodates us in Assam on 3 seats and Meghalaya 1 seat, they're willing to give them 3 seats. What has really happened is
what is it that has made Mamata Banerjee so very angry? Number one, that the seat sharing talks were not going anywhere because be with us. I'll come back to you in a moment from now. JDU's KC Tyagi is also now joining us. Mr. Tyagi, how do you view this? आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? तो ये तो बड़ा सेटबैक हो गया इंडिया अलायंस के लिए, क्योंकि इस समय ममता बनर्जी कह रही है कि हम सीट नहीं शेयर करेंगे कांग्रेस के साथ, हम फाइट नहीं करेंगे ये लोकसभा इलेक्शंस, बीजेपी के खिलाफ हम अकेले जाएंगे बंगाल में। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत मैराथन एफर्ट्स के बाद नीतीश कुमार जी ने ममता बनर्जी को, अखिलेश यादव जी को, अरविंद केजरीवाल जी को गठबंधन के लिए तैयार किया था। मूलतः तीनों गैर कांग्रेसी, गैर भाजपाई विकल्प बनाने के प्रयासों में लगे हुए थे। हम निरंतर कांग्रेस पार्टी से आग्रह करते रहे हैं। सीट बंटवारे को लेकर के जो देरी हुई थी उस पर भी नीतीश कुमार जी अफसोस में थे। कांग्रेस पार्टी इनको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में न लेकर के इसको अपने विरुद्ध आचरण के रूप में स्वीकार करती है। जहां पर कांग्रेस बड़ी पार्टी है वहां किसी भी दल को साझेदारी देने के लिए तैयार नहीं है, चाहे हरियाणा हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, कर्नाटका हो और तेलंगाना हो। वो मानते हैं कि वहाँ किसी क्षेत्रीय दल का कोई अस्तित्व नहीं है। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, तमिलनाडु हो, पश्चिमी बंगाल हो, वहाँ पर जो छत्रप हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, जो सत्ता में हैं, जो बड़े दल हैं, वो उनके अस्तित्व को भी नहीं स्वीकार करती है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा खड़गे जी से और राहुल गांधी जी से निवेदन है कि दिन प्रतिदिन इंडिया गठबंधन को सेटबैक हो रहे हैं, वार्ता ठप है, मांगों की लिस्ट बढ़ती जा रही है, लिहाजा वो इसमें इंटरवीन करें, तुरंत मीटिंग बुला लें। केसी त्यागी जी, गलती क्या कांग्रेस पार्टी की है? वो बात नहीं करना चाह रहे। ममता बनर्जी का ये कहना है कि उनके पास कर्टेसी नहीं है। बंगाल में आ रही है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, हमें बताया भी नहीं गया है कि हम ज्वाइन करें यात्रा, ये कर्टेसी भी नहीं एक्सटेंड करते। वो क्या अलायंस पार्टनर है, कहती है ममता बनर्जी। ये सवाल हम उठा चुके हैं। अफसोस है कि वार्ता विफल हो रही है, बातचीत की सीटों की, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम चाहते हैं कि तुरंत इसके इंडिया गठबंधन की कमेटी की मीटिंग बुला करके चीजें सॉर्ट आउट की जाए। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से चुनाव की तैयारियां की हैं उसके मुकाबला करने के लिए हमें और अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत पड़ेगी। जी बिल्कुल, लेकिन ये बताइए कि जहां तक आपके स्टेट बिहार का मामला है और आपके पार्टी का मामला है, क्या नीतीश कुमार खुद भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर में भाग लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे? इसके बारे में हमें बताइए। इस विषय में कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन बेहतर होता कि घटक दलों को कॉन्फिडेंस में लेकर के यात्रा प्रारंभ की गई होती। यद्यपि राहुल जी के प्रयासों और यात्राओं से हमें कोई विरोध नहीं है। विरोध नहीं है, लेकिन पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं ये अभी आप कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। हमारी पार्टी ने तय नहीं किया है जी। लेकिन आप बताइए कि जहां तक टीएमसी और कांग्रेस का सवाल है, और यहां पर कई सारे ऐसे बयान दिए गए थे ममता बनर्जी के खिलाफ। अधीर रंजन चौधरी ने कल बयान दिए ममता बनर्जी के खिलाफ। कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है उनको कैसे देखना चाहिए इस पूरे मामले को? क्योंकि अधीर रंजन चौधरी तो कई बार पिछले सालों में कई बार ममता बनर्जी के खिलाफ बयान दे चुके हैं और वो देते रहे हैं अभी भी। Okay, KC Tyagi of the JDU saying that the Congress in fact should be putting its house in order. Concerns regarding seat sharing have been raised in our internal meetings. Concerns about addressing these problems have been raised in our meetings, and the Congress must immediately address these problems and the developments from Bengal today.